کاٹ ہو جاتے ہیں آپ اور آپ کے سارے خاندان والے. شعب ابی طالب کہا جاتا ہے اس مقام کو, اس میں آپ محصور ہو گئے. یہاں تک حالت گزر گئی تھی کہ جانوروں کے چمڑوں کو بھگو کر کے اور پھر اس کو پکا کر کے کھایا جا رہا تھا. درختوں کے پتے لائے جاتے تھے اور اس کو ساگ بنا کر کے استعمال کیا جا رہا تھا. اتنی دقت پیدا ہو گئی تھی. 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا. کفارہ نے مکہ نے بائی کاٹ کیا تھا. شعب ابی طالب میں آپ اور آپ کے تمام ساتھی اور آپ کے تمام حواری اور آپ کے تمام معاونین سب کے سب محصور ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے تھے. ان لوگوں نے جو شرط رکھی تھی, اس شرط کا معاملہ تھا کعبہ کی دیوار پر لٹکی ہوئی تھی وہ شرط, اس کو دیمک نے کھا لیا. تو کسی نے جا کر کے بتا دیا کہ تم سارے لوگ اپنی چیزوں کو جا کر کے دیکھو جو معاہدہ کیے تھے, اس کو دیمک نے چاٹ لیا, وہ شرط ختم ہو گئی. اور اس میں ایک ایسے صاحب نکل گئے تھے جن کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے. انہوں نے دیکھا تو کہا اب میں معاہدے کو ختم کروا دیتا ہوں. ختم کروانے کے بعد آئے اور کہا سن لو کفاران مکہ, جو معاہدہ کی کر کے تم نے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا تھا وہ معاہدہ ختم ہو گیا, جا کر کے دیکھو اب نشان تک نہیں رہ گیا ہے, اور جب نشان تک نہیں رہ گیا تو تمہیں معاہدہ توڑنا پڑے گا. چنانچہ اب لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو واقعی معاہدہ نہیں رہ گیا تھا. اب معاہدہ ٹوٹ گیا. سارے لوگ اور میرے آقا اس شعب ابی طالب سے باہر نکل آتے ہیں اور پھر مکہ میں اسلام کی تبلیغ شروع ہو جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال زندگی مکہ شریف میں گزر رہی ہے. مکہ شریف میں 10 برس کی زندگی گزر رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 10 سال کی زندگی میں معراج کا واقعہ بھی پیش آتا ہے اور ہجرت کا آخری واقعہ پیش آتا ہے اور بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں. بہت ساری باتیں مکہ میں پیدا ہوئی ہیں. نہ جانے کیسی کیسی لڑائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے, لیکن میرے سرکار نے ان ساری چیزوں کا دفاع کرتے ہوئے اسلام کو آقا آگے بڑھا رہے ہیں. میرے سرکار کی مکمل کوشش یہ تھی کہ جنگ نہ ہونے پائے, تلوار نہ اٹھنے پائے, تاکہ کسی مسلمان کا معاشرتی زندگی برباد نہ ہونے پائے. میرے سرکار نے دیکھا کہ بچیاں آج بھی زندہ درگور کی جا رہی ہیں, عورتیں ماری جا رہی ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں بھرے مجمع میں, اے لوگوں خبردار کوئی اپنی بچی کو مارے نہ قتل نہ کرے. جب کسی کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ بچی اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے پردہ بن جاتی ہے. بخاری شریف میں میرے سرکار کے یہ الفاظ ہیں, کسی طرح من النار حجابا من النار. جب کسی کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جاتی ہے. آقا کریم نے جب بھرے مجمع میں صحابہ کے بیان کیا تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان دے رہے ہیں, صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اور جس کے پاس بچیاں نہ ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر پوچھنے پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس بچیاں ہیں اور تم بچیوں کی پرورش کر کے شادی کر دو تو جنتی ہو. تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے 2 بچیاں ہوں. آقا فرماتے ہو دونوں بچیوں کی پرورش کرے شادی کر دے جنتی ہے. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے بچی نہ ہو. آقا فرماتے ہیں وہ بچیوں سے محبت کرے وہ جنتی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دیکھو, ان بچیوں کا کتنا مرتبہ بڑھا دیا ہے. یہی بچیاں ماری جا رہی تھی لیکن اب یہی بچیاں ماں کی گودوں میں کھیل رہی ہیں. انہی بچیوں کی سفتیاں ہو رہی تھی مگر یہی بچیاں مسکراتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. نبی کونین ارشاد فرما رہے ہیں بچیاں رحمت الہی کا ذریعہ ہیں. آپ جب تحریہ کرتے ہو مذہب اسلام نے تمہیں اسلام نے کوئی وقار نہیں دیا ہے. میں کہتا ہوں مذہب اسلام نے جو وقار عورتوں کو دے دیا ہے کسی دھرم میں اتنا وقار اتنا مرتبہ نہیں ملا ہے. نبی فرماتے ہیں جب یہ بچی ہے وہ تمہارے لیے رحمت الہی کا ذریعہ ہے اور یہی بچی تمہارے مغفرت کا ذریعہ ہے. یہ بچی جہنم سے بچانے کے لیے تمہارے لیے آڑ ہے اور یہی بچی جب عورت بنتی ہے تو شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. مساؤ دنیا امراتی صالحہ. اور جب یہی عورت ماں بنتی ہے تو نبی فرماتے ہیں ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے. ذرا اندازہ لگاؤ نبی کے فرمان پر. نبی فرما رہے ہیں کہ ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے. جب ماؤں کے قدم کا یہ حال ہے تو جس کے صدقہ میں ماؤں کو زندگی ملی ہے, مائیں بنی ہے, اس رسول کے قدم پاک کا حال کیا ہوگا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول جنت رسول اللہ
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा समझना चाहते हो प्यारे, यही तमाम सहाबा हैं। एक मर्तबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इस वक्त मक्का में सबसे हसीन और खूबसूरत मर्द हजरत दहिए कल्बी हैं। या रसूल अल्लाह, दहिए कल्बी वो नौजवान हैं जो सारे मक्का में नौजवानों में सबसे ज्यादा हसीन हैं और अपनी कौम के वो सरदार हैं। उनकी कौम के 700 अफराद उनके अंडर में हैं। या रसूल अल्लाह, अगर वो कलमा पढ़ ले मेरे सरकार तो उनके असर से पूरी उनकी कौम कलमा पढ़ लेगी। ये सुनना था। मेरे आका के नबूवत वाले हाथ उठ गए। अल्लाह दहिए कल्बी को इस्लाम दे दे, हिदायत नसीब फरमा दे। इतना अर्ज करते हैं रब की बारगाह में आका कि सवेरे सवेरे मेरे सरकार जलवा फरोज हैं और सहाबा बैठे हुए हैं। तब तक दहिए कल्बी चले आ रहे हैं। आका से सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो दहिए कल्बी आ रहे हैं। अब दहिए कल्बी पहुंच गए आका की बारगाह में और पहुंचने के बाद जब सरकार को सलाम पेश करते हैं, आका ने अपनी चादर बिछाई, दहिया बैठ जाओ, मगर उस पर बैठते नहीं हैं। हजरत दहिए कल्बी उस चादर को चूम लेते हैं, उठाकर सर पर रख लेते हैं, आंखों को बोसा लगाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इस चादर को ये माहौल पेश करें। या रसूल अल्लाह, इस चादर पर हम बैठने के लायक नहीं हैं। सरकार ने कलमा पेश किया, कलमा वो पढ़ लेते हैं और कलमा पढ़ने के बाद अब बैठ करके दहिया कल्बी रोने लगे। आका फरमाते हैं दहिया रो क्यों रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने गुनाहों को सोच कर रो रहा हूँ। दहिया, तुमने कौन सा गुनाह किया है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने बड़ी खताएं की हैं। ये मेरे सरकार, अब मैं इस्लाम ले आया हूँ, अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ या रसूल अल्लाह, मैं अपने गुनाह को बयान कर रहा हूँ। आप अपने रब से पूछ लीजिए, जो सजा उस गुनाह पर हो मैं सहने के लिए तैयार हूँ या रसूल अल्लाह। जो सजा आप दें उसको मैं बर्दाश्त करूंगा। आका फरमाते हैं दहिया, तुम अपना गुनाह बयान तो करो। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, गुनाह बयान करते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है। आका फरमाते नहीं, बयान तो करो। हजरत दहिया कल्बी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, बयान करता हूँ, सुनिए। कतल तो बेअदी सबीना मिन बिनात, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने हाथों से 70 लड़कियों को कत्ल किया है। या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा मुजरिम हूँ सरकार। इतना सुनना था। आका की मुकद्दस निगाहें झुक गईं और हजरत दहिए कल्बी तड़प तड़प कर रोने लगे। रब ताला ने हजरत जिब्रील को भेज दिया। हजरत जिब्रील पैगाम लेकर के हाजिर आ गए। या रसूल अल्लाह, निगाहें नबूवत उठाओ और अपने गुलामों की तरफ करम फरमाओ। या रसूल अल्लाह, रब ताला इरशाद फरमाता है कि दहिए कल्बी के गुनाह 60 साल के भी होते तो बख्श दिए जाते। या रसूल अल्लाह, जैसे कोई कलमे तैयबा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल होता है उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इतना मेरे आका खुशखबरी पाते हैं तो इरशाद फरमाते हैं दहिया, तेरी खताएं माफ कर दी गई इस्लाम से पहले की। और जो एक मर्तबा कलमे तैयबा पढ़ लेता है उसके अगर 60 साल के कुफ्र के गुनाह हो तो अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। तो आका फरमाते हैं जो कसरत से कलमा पढ़ता रहे फिर उसकी बख्शिश तो नहीं होगी। फबका असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरे सरकार और सहाबा सब रो पड़े इस बात पर। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ए मुसलमानों, कलमा की कितनी बड़ी फजीलत है। कलमा पढ़ा करो सोते उठते बैठते हुए। आका तबलीग इस्लाम फरमा रहे हैं, इस्लाम में लोग आते चले जा रहे हैं, इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है और इस्लाम के मुखालिफिन भी बढ़ते चले जा रहे हैं। पूरी तगदो करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं इस्लाम की तहरीक रुक जाए। अब दारुल नदवा में आखिरी मीटिंग काफिरों की मुनाकिद होती है। उस आखिरी मीटिंग का सरदार अबू जहल माना जाता है। सारे सरदार आकर के पहुंच जाते हैं और दारुल नदवा में एक आखिरी मीटिंग, फैसला कुल मीटिंग की जाती है। दारुल नदवा उस घर को कहते हैं जो मशवरा के लिए अरब लोग मखसूस किया करते थे। अब बताइए, आज जिस जालिम हुकूमत का रवैया, इसने मक्का शरीफ में बाबुल नदवा भी बनाया है, यानी जहां काफिरों ने बैठ करके सरकार के कत्ल का प्रोग्राम बनाया था उस जगह भी एक दरवाजा कायम किया है और उस दरवाजे का नाम दारुल नदवा रखा है। वो जाजे कराम जो जाते हैं उनसे पूछिए। चुनांचे उस मकाम पर मीटिंग की गई। मीटिंग में सारे लोग शरीक होने के बाद वो अपना अपना एक माहौल पेश करने लगे। मोहम्मद को यहाँ से निकाल दिया जाए। कहा निकाल दोगे तो जानते हो वो जहाँ जाएंगे उनके मानने वाले वहीं हो जाएंगे। कहा एक काम करो कि उनके खिलाफ जंग की जाए। कहा जंग नहीं कर पाओगे फिर खानदानी मामला उभर आएगा और कबीले कुरैश से लड़ नहीं पाओगे। किसी ने कहा एक काम किया जाए, उनका बाईकाट किया जाए। कहा पहले तो बाईकाट कर चुके हो 3 साल, फिर कोई नतीजा नहीं निकला, उनके मानने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। कहा ऐसा है कि उनके मानने वालों को मारा जाए। कहा मारा तो जा रहा है लेकिन कहाँ रुक रहे हैं, उनका कलमा पढ़ रहे हैं। तब तक दरवाजा खटखटाया, सब लोग चौंके। दरवाजा खटखटा रहा, हाँ दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने के लिए खड़े हुए दरवाजा खोलने वाले कौन? काना शेखुन नजदी। ये लफ्ज हदीस की किताबों में है, पूछिए उलमा में मौजूद है सब। मैं शेख नजदी हूँ। शेख नजदी, हाँ ये मक्का है, मक्का का खोलो, मैं तुम्हारी मीटिंग में आया हूँ। अबू जहल को सब कह रहे अबुल हकाम कहाँ का खोल दिया दरवाजा, कहा कौन है? का कह रहा मैं शेखुल नजदी, आना शेखुल नजदी, मैं शेख नजदी हूँ। का खोल दो। दरवाजा खुला। ये लहीम शहीम बहुत बड़ा मौलवी है,
सामने जाकर पहुंचा। कहाँ से आना हुआ? का नजद से। ये वही नजद है जिसका नया नाम रियाज है। रियाज ही का नया नाम नजद है, जिसको इन लोगों ने अपनी दारुल सल्तनत करार दिया है। मक्का शरीफ से रियाज 800 किलोमीटर की दूरी पर है। क्यों? 800 किलोमीटर की दूरी पर है। 800 किलोमीटर से चलकर गया था मक्का में सरकार के कत्ल की मीटिंग में। तो ये तो बहुत दूर दूर से चले आए अगर सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, तो घबराओ नहीं, पहले भी बहुत सफर किया करते थे। और ये था कौन? इब्लीस था। कहा किस लिए आए हो? कहा मीटिंग में आया हूं, कैसा मशवरा हो रहा है मोहम्मद के खिलाफ। लोगों ने अपना अपना मशवरा दिया, कहा सब फेल। कहा अबू जहल तुम्हारा मशवरा? कहा मैंने ये मशवरा किया मोहम्मद को कत्ल किया जाए। कहा है बहुत बढ़िया मशवरा है, लेकिन तरीका मैं बताता हूं। कहा कैसे? कहा एक एक कबीले का एक एक नौजवान तलवार लेकर के निकले और सब उनको उनके घर को घेर करके उनको कत्ल करो। जब इस तरह से उनकी कत्ल में हर कबीले का एक फर्द शामिल रहेगा तो अब कबीले कुरैश के लोग खानदानी तौर पर किसास नहीं ले पाएंगे, वो क्या नाम जंग नहीं कर पाएंगे, किसास लेने पर राजी हो जाएंगे और हम सबके सब किसास दे करके मामला तमाम कर देंगे। कहा चलो मामला बिल्कुल तय। इधर ये तय हो रहा है, उधर रब का एहतमाम देखो, महबूब की इज्जत अफजाई, जिसे कौन चखे। सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत रब फरमा रहा है। देखो रब जब मारना चाहेगा तो कोई बचा नहीं सकता। 1700 बरस की उम्र थी नमरूद की और उसका सर तक नहीं दर्द किया था, खुदा बन बैठा था माज़अल्लाह। और जब बदमाशी किया इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, तो रब ने एक लंगड़े मच्छर को भेजा। कितने बदमाश है मच्छर, लोग आज से थोड़े बदमाश हैं, एक से एक नमरूद को मारते हैं। ये पूरी हुकूमत आज इसे दवा ईजाद करते करते लाते लाते साइंस वाले फेल हैं। एक लंगड़ा मच्छर, वो भी नहीं सीधा रहा, लंगड़ा, वो भन 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 करते गया, नाक में घुस गया। और जब नाक में घुसा तो अब ये जब रहे बैठा रहे, तब इसके दिमाग में ये भेजे में चले और जब ये घबराए तो अपना सर मारे दीवार से, पत्थर से, तब ये रुक जाए। तो सर टकरा टकरा करके मरदूद नमरूद मरा। तो रब ताला ने जब मारना चाहा तो लंगड़े मच्छर से मार दिया। और सुनो, रब जब बचाता है तो बहुत ही अदना मखलूक के जरिया से बहुत आला को बचाता है, हिफाजत फरमाता है रब ताला। महबूब की इज्जत अफजाई देखो, रब अपने महबूब की अजमत का ऐलान कर रहा है। इधर तो सारे कुफार कत्ल का प्लान बना करके तलवारें निकल आती हैं और उन सब की तलवारें जाती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर नबूवत पर हैं, हजरत मौला कायनात को आवाज दी, अली इधर आ जाओ, आए करीब। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हुक्म। आका फरमाते हैं बिस्तर पर सो जाओ। और अली ये फला फला अमानतें हैं, तुम इन अमानतों के देने के बाद में वापस आ जाना। और मेरे लिए अब खुदा का हुक्म हो गया, मैं हिजरत कर रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को जरूरी हिदायतें देने के बाद अपने बिस्तर पर सुला देते हैं। और सुलाने के बाद जब दरवाजा खुला तो देखा सारे कुफारों के नौजवान तलवारें लेकर के उठाए, दीवार को फांद कर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे हैं कि मोहम्मद निकले तब कत्ल किया जाए, मोहम्मद निकले तब मारा जाए। दरवाजा खुल गया मगर सबकी निगाहें देख रही है पटी की फटी, महबूब दिखाई नहीं दे रहे हैं। महबूब गुस्ताख को महबूब दिखाया नहीं जाता, अंदाज हसीनों को सिखाया नहीं जाता। आप कुफारों की निगाह से जा रहे हैं, रब अपने महबूब की हिफाजत फरमा रहा है। मेरे सरकार ने चंद कंकरियों को मुट्ठी में लिया और आयत करीमा पढ़ करके उनकी तरफ फेंक दिया। नबी के हाथ से कंकरियों का जाना था कि रब कुरान में बयान फरमा रहा है, ये महबूब कुफारों की तरफ जो तूने कंकरियां फेंकी थी वो तूने नहीं फेंकी थी बल्कि मैंने फेंकी थी। देखो रब नाचने को, महबूब के फेंकने को रब ताला अपना फेंकना बयान फरमा रहा है। ये महबूब तुमने उन कंकरियों को नहीं मारा था, मैंने मारा है। महबूब के हाथ को रब ताला अपना हाथ बयान दे रहा है, महबूब तुम्हारा हाथ नहीं है, वो मेरा हाथ है। अल्लाह अल्लाह। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकरियों को फेंक देते हैं, उनकी तलवारें फजा में चमक रही हैं और उनकी निगाहों के नीचे से महबूब निकल जा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक हाजिर हैं, कुर्बान होने वाले हैं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह हुक्म क्या है? आका फरमाते हैं अबू बकर सवारियां कहाँ हैं? अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैंने सवारियों को फला जगह पर पहले ही भेज दिया था। आका वहां तशरीफ ले गए। फरमाते हैं अबू बकर अपनी सवारी की कीमत बोलो। आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अबू बकर का जानो माल सब कुछ आपका है, मेरे आका मैं कीमत क्या लूं? मेरे आका फरमाते हैं नहीं कीमत ले लो। अबू बकर बताओ तुम्हारे सवारी की कीमत क्या है? यहीं से ज़हन फिक्र दिया जा रहा है कि कितनी भी दोस्ती आपस में हो लेकिन लेन देन साफ रखा करो ताकि बिगाड़ न पैदा होने पाए। माज़अल्लाह बिगाड़ होने का कोई सवाल नहीं हो रहा है मगर सरकार कैसा दस्तूर हयात दे रहे हैं। हज़रत अबू बकर फिर साफ फरमाते हैं
अबू बकर अपने सवारी की कीमत बता दो। आका से अर्ज करते या रसूल अल्लाह सब कुछ आपके लिए है। अब सरकार सवार हुए और हजरत अबू बकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे, दिन का उजाला फैल गया, गारे सौर के करीब आए। जब मक्का की गली गली में सरकार के खिलाफ तहरीक चलाई जा रही थी और मक्का के बाजारों में सरकार के पीछे आदमी दौड़ाए जा रहे थे, कोई इनकी बात न सुने, उन्हीं दिनों में यमन का एक सूबादार जिसका नाम तुफैल बिन अमर दोशी है, वो काबतुल्लाह की जियारत के लिए मक्का आया। जब उसके मक्का आने की इत्तला मिली तो अबू जहल और उसके तमाम हवाली मवाली निकल करके मक्का से बाहर उसका इस्तकबाल करते हैं। तुफैल बिन अमर दोशी का बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। अबू जहल ला करके अपने घर ठहराया और ठहराने के बाद उसने बड़ी खातिर और मदारत की, अपने साथ साथ ले जाता, काबा का तवाफ कराता और काबा की जियारत कराता। लेकिन उसने एक बात बताई, कहा सुनो आप यमन के गवर्नर हो, आप हमारे शहर में आए हो, हमारे शहर में एक इनकलाब बरपा हुआ है, हमारे शहर में एक मामला हो गया हो। मामला ये है कि एक मोहम्मद निकले हैं जो अपने आप को नबी और रसूल कहते हैं, उनकी बात जो सुन लेता है उनका हो जाता है। वो कुरान तिलावत करते हैं, जो कुरान सुनता है सुनता रह जाता है। तुम सूबे यमन के गवर्नर हो और अच्छे शायर हो, तुम बहुत ही खुश मिजाज हो, इसलिए हम तुमसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि तुम काबा की जब जब जियारत करने के लिए जाना तो देख लेना कि मोहम्मद तो नहीं है, इसलिए कि उनकी जो सूरत देखता है देखता रह जाता है। अब अबू जहल और उसके तमाम साथी तुफैल बिन अमर दोशी को अपने साथ वक्त वक्त पर ले जाया करते थे। लेकिन एक रोज सवेरे सवेरे यही तुफैल बिन अमर दोशी उठे और उठने के बाद कहा आज मैं तनहा काबतुल्लाह की जियारत करूंगा और खाने काबा के तक का तवाफ करूंगा। वो तनहा निकल करके जैसे हरम में दाखिल हुए, उनका दाखिल होना था कि निगाह पड़ी एक बड़े हसीन और जमील चेहरे वाले, वो कुछ कर रहे हैं, कभी वो अपनी पेशानी को जमीन पर रखते हैं और कभी उठ करके खड़े हो जाते हैं। तो तुफैल बिन अमर दोशी ने जब हुस्न देखा तो यकीन कर लिया कि यही है मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही है जिनके पास हमको आने के लिए रोका जा रहा है, इसलिए कि ऐसा हसीन चेहरा मैंने नहीं देखा। यमन से लेकर के मक्का तक मैं चला आया हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत चेहरा मुझको देखने को नहीं मिला। आला हजरत अजीमुल बरकत जब अपने आका के हुस्न को बयान करने पर आए तो अर्ज करते हैं आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान न तो जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। उसने इतना हसीन चेहरा आज तक नहीं देखा था। जब बेकरार हुआ चेहरे रसूल देख करके तो अपने कान में रुई ठोसे हुए था, रुई को निकाल लेता है और निकालने के बाद जब सरकार की मुबारक आवाज को सुनता है तो बेकरार हो जाता है। कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, वो कुरान जो पढ़ा जाए तो मोमिन का दिल मचलने लगता है, वो कुरान पढ़ते रहो तो दिल खुश होता रहता है। मर्द मोमिन कुरान पढ़ता जाए कभी उसका दिल नहीं घबराएगा, यही वो किताब है जिस किताब की तिलावत की बुनियाद पर मर्द मोमिन कभी घबराता नहीं है। मेरे सरकार कुरान की तिलावत कर रहे हैं और लोग कुरान पढ़े तो किस अंदाज से पढ़ते हैं, कितना अच्छा लगता है। और जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ, नबी अपनी जबान से कुरान की तिलावत करें तो किस तरह से लोगों का दिल उनकी तरफ मायल होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए तो फरमाते हैं कि नबी अपनी जबान से कुरान की तिलावत करते हैं, ये नबी की जबान है। नबी अपनी जबान से रब की बारगाह में जो दुआ फरमा दे रब कबूल फरमा लेता है। नबी की जबान कभी भी रब की बारगाह से खाली नहीं वापस हो रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत तभी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम।
आका अपनी जबान से कह दे तो देखो किस तरह से जबान सरकार की पूरी हो रही है। नबी की बारगाह में एक ढीठ हाजिर हुआ और वो कहता है, ए मोहम्मद आप तो ऐसे ऐसे हैं। वो अपने मुंह को टेढ़ा बना करके करने लगा। आका फरमाते हैं तेरा मुंह इसी तरह से हो जाए और अर्ज करते हैं रब की बारगाह में, मेरे मौला इसका मुंह टेढ़ा फरमा दे। नबी की मुकद्दस जबान से जुमला निकलता है कि उसका मुंह टेढ़ा ही टेढ़ा रह जाता है, फिर उसका मुंह सीधा नहीं हुआ। नबी की शान में नबी के सामने तौहीन कर रहा है तो उसका मुंह टेढ़ा हो गया। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं तो नबी के मुकद्दस मुंह को समझना चाहता है। मेरे सरकार के दहाने मुबारक का हाल ये है कि वो दहानी जिसके हर बात वही खुदा, वो दहानी जिसकी हर बात वही खुदा और चश्माए लाखों सलाम लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। मेरे सरकार अपनी जबान से कुरान तिलावत फरमाते हैं। जब तुफैल बिन अमर दोसी ने कुरान की तिलावत को सुना, बेकरार होते हुए आका की बारगाह में खड़ा हो गया। मेरे सरकार नमाज पढ़ रहे थे, नमाज से फारिग हुए। तुफैल बिन अमर दोसी ने पूछा, क्या आप ही मोहम्मद, आप कौन हैं? आका ने फरमाया, अना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। उसने अर्ज किया कि आप ये क्या कर रहे थे? आका फरमाते मैं नमाज पढ़ रहा था। ये नमाज क्या है? सरकार फरमाते हैं रब की इबादत है। रब कौन है? सरकार फरमाते हैं जिसने सबको पैदा किया वो रब है। हम उसकी इबादत कर रहे थे, अपने आबिद होने का उसकी बारगाह में इकरार कर रहे थे। ये रब की इबादत है। कहा अच्छा जो आप पढ़ रहे थे उसे फिर पढ़ करके सुना दीजिए। मेरे सरकार ने कहा मैं कुरान पढ़ रहा था। नबी कौनैन कुरान की तिलावत फरमाते हैं। तुफैल बिन अमर दोसी अरबी शायर भी बड़े अच्छे थे। उन्होंने जैसे कुरान की चंद आयतों को सुना, अर्ज किया या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाइए, इस्लाम पेश कीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए। यमन के गवर्नर को कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। आपसे पूछना चाहता हूँ, जो तलवार की छांव में मक्का में आया था, जिसका इस्तकबाल तलवार की चमक में की गई थी और खाने काबा के इर्द गिर्द वो तवाफ करता था तो लोग उसके इस्तकबाल में खड़े रहते थे, वही सूबे यमन का गवर्नर नबी के कदम में हाजिर है और अपने ताज को उतार कर सरकार की बारगाह में रखा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये मक्का वाले आपकी बात को झुठलाते हैं, आप यमन चले चलिए। सरकार मैं जिस सूबे का गवर्नर हूँ, आका मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे लोगों को आपके करीब लाऊं, आप इस्लाम पेश करें। आका करीम ने फरमाया तुफैल बिन अमर दोसी एक काम करो, तुम जाओ, अल्लाह ताला मुझे जहां हुक्म देगा मक्का छोड़ करके वहां मैं जाऊंगा। हाँ अगर मेरी अपनी मर्जी हुई और रब ताला का हुक्म हुआ तो मैं तुम्हारे ही शहर में आऊंगा, लेकिन अगर रब का हुक्म हुआ जिस शहर में जाने के लिए मैं उधर चला जाऊंगा। तुफैल बिन अमर दोसी को सरकार ने दुआ दी। तुफैल बिन अमर दोसी तो चले गए। अब आप जरा नतीजा निकालिए। जो लोग ये कह दिया करते हैं कि मजहब इस्लाम तो तलवार के जोर से फैला था, प्यारे मजहब इस्लाम कल भी फैला था, आज भी फैल रहा है और कयामत तक फैलता रहेगा। मजहब इस्लाम का कुछ नुकसान नहीं होता है। हाँ ये और बात है, जब इस्लाम के मानने वाले अपनी बदअकीदगियों और अपनी बदआमालियों की बुनियाद पर इस्लाम का चेहरा मस्ख करना चाहते हैं तो इस्लाम का तो कुछ नुकसान नहीं होता है, अलबत्ता इनका नुकसान हो जाता है। इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ता है, अलबत्ता इनका बिगड़ जाता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना दबाओगे वो इस्लाम है। इस्लाम मिटा नहीं है, ना मिटेगा। रब फरमाता है जाल हक तो ज़हकल बातिल इल्लल बातिला काना ज़हूका, हक को मिटा बातिल, बातिल को मिटना ही है। अब आप जरा गौर फरमाइए प्यारे, आइए देखिए रब ताला ने कुरान नाजिल फरमाया महबूब पर। मेरे सरकार की मुकद्दस सीरत देखते चलिए। जब सरकार ने कलमा की इशाअत की है तो मक्का के लोग दुश्मन हो गए, मदीना तैयबा में लोग दुश्मन हुए। मेरे सरकार जहां जहां जाते थे लोग दुश्मन हो गए। मकाम ताइफ में सरकार के दुश्मन हो गए। गज़वे खंदक के मौका पर सरकार के दुश्मन है। सरकार के दुश्मनों की कमी नहीं है। मेरे सरकार ने जब से ऐलान नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत से लेकर के और सरकार जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए उस वक्त तक दुश्मनों की फहरिस्त मुरतब करो तो बहुत काफी तादाद दुश्मनों की पाई जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे सरकार जब ऐलान नबूवत के बाद से अपनी जिंदगी दुनिया में गुजार रहे थे तो उस वक्त सरकार के दुश्मन थे, और क्या जब सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए तो सरकार के दुश्मन नहीं है? कल भी सरकार के दुश्मन थे और आज भी सरकार के दुश्मन है। मैं आपको सिर्फ यह जहन देना चाहता हूँ कुर्ला के मुसलमानों, आप अपने जहन को साफ कर
لو، آج مصالحت کے بڑے خوگر بنے دکھائی دے رہے ہو، آج مذہب اسلام پر نہ جانے کیسی ترقیاں کستے ہو۔ سن لو جو بات بتانا چاہتا ہوں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن دو طرح کے ہیں۔ ایک طرح کے دشمن تو وہ ہیں کہ جو سرکار کی تحریک کے مخالف ہیں، ان میں سے حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت ابو سفیان ہیں، اور ایک دشمن سرکار کے وہ ہیں جیسے ابو جہل ہے، عتبہ شیبہ ہیں، ولید بن مغیرہ ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ سرکار کی تحریک کے بھی دشمن ہیں اور سرکار کی جان کے بھی دشمن ہیں، اور یہ جماعت صرف سرکار کی تحریک کی دشمنی کر رہی ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو جو جماعت سرکار کی تحریک کی دشمنی نہ سمجھی کی بنیاد پر کر رہی ہے، انہیں بعد میں راستہ مل جاتا ہے، وہ صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں، وہ راہ راست پر آ گئے۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا، عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا، یہ لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اور جو لوگ نبی کی گستاخی پر تلے ہوئے تھے کہ تحریک کی بھی دشمنی کر رہے ہیں، مشن کی بھی دشمنی کر رہے ہیں، اور نبی کے عظمت کے دشمن ہوتے ہوئے جان کی بھی دشمنی کر رہے ہیں، تو وہ لوگ کبھی بھی انہیں توبہ کی توفیق نہ ملی۔ ابو جہل مارا جاتا ہے، عتبہ شیبہ مارے جاتے ہیں، ولید بن مغیرہ رسوا کیا جاتا ہے۔ یہ دو دشمنوں کی جماعت ہے۔ پتا چلا کہ دشمنی دو طرح کی ہوتی ہے، اگر عظمت نہ جانتے ہوئے دشمنی کی جائے تو ممکن ہے مصالحت ہو جائے، مگر عظمت جانتے ہوئے جب دشمنی کی جاتی ہے تو وہ دشمنی بڑھتی جاتی ہے، دشمنی ختم نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات اور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کا حال صرف سرکار کی مقدس حیات ظاہری ہی تک نہیں تھا کہ دشمن پھر بعد میں نہیں ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، اچھا جب سرکار پر قرآن نازل ہو رہا تھا اور کوئی سرکار سے دشمنی کر رہا تھا تو جواب کون دے رہا تھا؟ کس نے جواب دیا ہے؟ آؤ دیکھو، یہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ میرے سرکار نے جب قوم کو بلایا تھا، یا معاشر القریش، اے میری قوم آ جاؤ، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب وہ کوئی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے اجتماعی شکل میں تو اس طرح سے کہہ کر کے بلاتے تھے، سارے لوگ آ جاتے تھے۔ میرے سرکار نے جب فرمایا یا معاشر القریش، اے قریش کے لوگ آ جاؤ، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو کس لیے جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا محمد کس لیے جمع کیے ہو؟ آقا فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ، تم سب کے سب کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ میرے سرکار نے جیسے یہ اعلان کیا، بس اعلان کرنا تھا کہ سارے لوگ بھاگنے لگے۔ سارے لوگ تو بھاگے مگر اس میں سرکار کا حقیقی چچا ابو لہب ہے، وہ جب سرکار کی بارگاہ سے بھاگا تو اس کے بھاگنے کا انداز عجیب تھا۔ وہ سارے لوگ بھاگے تو خاموشی سے سرکار کا چہرہ دیکھتے ہوئے بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے ہم محمد آپ کی بات نہیں سنیں گے، کوئی کہہ رہا ہے آپ نیا دین پیش کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اندیکھے خدا کی عبادت کرو۔ اس طرح کا جملہ بولتے ہوئے لوگ چلے گئے، لیکن جب یہ جانے لگا تو یہ کہتا کیا ہے، اے محمد کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا تمہارے لیے ہلاکت ہو؟ معاذ اللہ، اتنا جملہ ابو لہب نے کہا تھا سرکار کے سامنے، کیا ہم کو آپ نے اسی لیے جمع کیا تھا تمہارے لیے ہلاکت ہو؟ یہ کہہ کر کے وہ جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت جبریل کو قرآن دے کر کے نازل کر دیا۔ جبریل محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، یہ میرے محبوب کی توہین کر کے جا رہا ہے، میرے محبوب کو تکلیف دے کر کے جا رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم پوری سورہ تبت یدا لے کر کے نازل ہو گئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ پوری سورہ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار پر لے کر کے نازل ہو گئے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، جب قرآن پڑھو 30واں پارہ اٹھاؤ، سورہ تبت یدا کی تلاوت کرو، تبت یدا ابی لہب۔ اردو اگر پڑھے ہو تو قرآن میں ترجمہ دیکھ لو، آیت کے نیچے لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ رب تعالیٰ کے فرمان پر غور کیجئے، ابو لہب نے ایک جملہ کہا تھا سرکار کو، رب فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تبا ٹوٹ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اس نے ایک مرتبہ گستاخی کی ہے، ایک مرتبہ کہا ہے۔ اب آقائے کریم پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے تبت یدا قیامت تک
मुसलमान तिलावत करते रहेंगे और हर वक्त कहते रहेंगे तब्बत यदा, अभी लहब के हाथ टूट जाए, अभी लहब के हाथ टूट जाए, अभी लहब के हाथ टूट जाए। आज जो लोग कहते हैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, मैं तुमसे पूछता हूँ, ओ नज्द की बदमाश औलादो, इस तरह का रहने फिक्र रखने वाला, कुरान उठा करके तिलावत करो। एक मर्तबा उसने कहा था मोहम्मद तुम्हारे लिए हिलाकत हो, अब कयामत तक मोहम्मद के कलमा पढ़ने वालों को कहना पड़ेगा तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब, अबी लहब के हाथ टूट जाए, अबी लहब के हाथ टूट जाए। यहीं से पता चला अगर महबूब को कोई एक मर्तबा कुछ कहेगा गुस्ताखी करते हुए तो अब उसको कयामत तक नहीं छोड़ा जाएगा, हरदम कहा जाएगा, हरदम कहा जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, तरह से बहुत खूब, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सुलह पसंद, जिंदाबाद। सुलह पसंद लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, सुभानी साहब किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, उनका बाप की जन्नत है, कब्र में इनके बाप काम आएंगे। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी के बदमाश दुश्मनों से मसालेहत का दम भरते हो, कुरान की तिलावत करो, देखो कुरान क्या कह रहा है। वो सरकार का हकीकी चचा है, अगर हकीकी चचा ने दुश्मनी की है तो रब फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब, अबी लहब के हाथ टूट जाए, टूट गया। बेशक कयामत तक लोग यही तिलावत करते रहेंगे। और ये जो तबलीग करने चले हैं किसी को कुछ ना कहो, क्या ये सूरह तब्बत यदा तिलावत नहीं करेंगे? ये उसको पढ़ेंगे नहीं? मस्जिद में तिलावत कर रहे हैं अबू लहब के हाथ टूट जाए, अबू लहब के हाथ टूट जाए, अबू लहब के हाथ टूट जाए। हम किसी को कुछ नहीं कहते, क्या कहने, अबू लहब को क्यों कुछ कह रहे हो? तो तुम बोल पड़ोगे कि अबू लहब ने सरकार को गाली दी थी, सरकार की शान में तौहीन की थी, अब हम उसको कयामत तक नहीं छोड़ेंगे। अब एक बात और बताऊं प्यारे, ये चले हैं नबी को देखने के लिए, मेरे सरकार पर जब ये सूरत नाजिल हुई और सरकार ने पढ़ करके सुनाया तो अबू लहब तो सुना, वो तो सोचा जो सोचा, उसकी बीवी थी उम्मे जमील। कुछ सरकार के ऐसे दुश्मन हैं जिन दुश्मनों का नाम तक कुरान ने बयान कर दिया है। उम्मे जमील को बड़ा गुस्सा आया। उम्मे जमील सरकार को हरदम कूसा करती थी, गालियां दिया करती थी। सरकार को पता पा जाती कि इस रास्ता से जाएंगे तो कूड़ा करकट कांटा उठाकर फेंक देती थी ताकि तकलीफ हो। रब ताला ने इसी सूरत तब्बत यदा में उसके शौहर को रद्द किया तो उसको भी रद्द कर दिया। रब का फरमान होता है, पूरी सूरत पढ़िए तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब। उसकी जोरू जो लकड़ियों का गट्ठर लेकर के चलती है, क्या कहने, उसकी मौत कैसे हुई थी? वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर के आ रही थी कि फंदा अचानक गले में फंस गया और लकड़ियों के गट्ठर के साथ वो खबीसा मर गई। उम्मे जमील हाथ में पत्थर लेती है। कुछ लोगों ने पूछा उम्मे जमील ये क्या करेगी? पत्थर, कमाज अल्लाह मोहम्मद को मारूंगी। इब्तिदाए इस्लाम का दौर है, मेरे सरकार हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार के बगल में हैं, आका के कदमों में खड़े हैं। उम्मे जमील अबू लहब की बीवी पत्थर लेकर के हरम में जाती है, ढूंढती है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं मेरे करीब आई और मुझसे पूछती है, ए अबू बकर इब्ने कहाफा बताओ तुम्हारे साथी मोहम्मद कहाँ है? हजरत अबू बकर कहते हैं मैं खामोश रहा। जब वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई तो मैंने आका से अर्ज किया, मेरे सरकार ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये उम्मे जमील आपको तलाश रही है, मैं आपके बगल में हूँ सरकार, मुझसे वो पूछ रही है और आपको नहीं देख रही है। क्या कहने, तो आका फरमाते हैं अबू बकर वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखना चाहती थी मगर रब को मंजूर ही नहीं है कि वो मुझे देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरम शरीफ में उम्मे जमील जब सरकार को न देख सकी तो तुम अगर नदवा से और देवबंद से ना देख सको तो कोई ताज्जुब नहीं क्या है। कहने, क्या कहने, और सरकार को जिसने देख लिया हजरत सुहैब रूम से आए देख लेते हैं, कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो गए। बिलाल हबश से आए सरकार को देखा, कलमा पढ़ लिया। हजरत सलमान फारस से आए सरकार को देखा, कलमा पढ़ लिया। मगर अबू जहल अबू लहब का घर बगल में है, वो नबी को देख ना सके, रब को मंजूर ही नहीं है। अंदाज हसीनों को सिखाया नहीं जाता और गुस्ताख को महबूब दिखाया नहीं जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सुभानी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। बात और बताता चलूं, जब सरकार अपनी हयात जाहिरी से दुनिया में थे
اور اعلان نبوت کے بعد لوگوں نے دشمنی کرنا شروع کی تو جب تک میرے سرکار حیات ظاہری سے دنیا میں تھے تب تک قرآن نازل ہو رہا ہے، اور جو دشمنی کر رہا ہے اس کا منہ توڑ جواب قرآن دے رہا ہے. کیا کہنے ہیں؟ اب جب قرآن کا نزول ختم ہوا، وہی کا سلسلہ ختم ہوا، سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو کیا سرکار کے دشمن نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. تو اب کس کو جواب دینا ہے؟ قرآن جواب دیتا رہا جب تک نازل ہوتا رہا. قرآن کی ذمہ داری تھی، قرآن جواب دیتا رہا. اور اب جب قرآن کے نزول کا سلسلہ بند ہوا، محبوب کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، تو تعلیق قرآن کو جواب دینا پڑے گا. قرآن